हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलो फिर हम एक वीडियो बनाते हैं। तो फिर से हम आ जाते हैं अपने ट्रैक पे वापस। तो आज हम जो क्वेश्चन जिस पे करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 রেসিলেক্সটি। পার্টিকুলার টপিক है বেসড অন কোশ্চেন বেসড অন রিভ ভেলোসিটি। তো আমি যিমান কোশ্চেন কৰিম রিভ ভেলোসিটি কৰিম। তাৰ ওপৰত আৰু এটা কথা, আই উইল ইউজ টু ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা হ'ব হিন্दी, এটা হ'ব অসমীয়া। मैं दो लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, हिंदी और आसामीज। सो बीच बीच में मैं दोनों में शिफ्ट करके एक बार दोनों में बोलूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, हिंदी में समझना है हिंदी में समझ लो, आसामीज में समझना है आसामीज में, जो लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल लगता है वही देखो। लेकिन दोनों में से जो अच्छा लगता है उसमें आप देख सकते हो। तो मैं যোনটো তোমালোকে দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভাল পোৱা সেইটোত চাই ল'বা। সো আই ইউজ বোথ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ। সো লেট स्टार्ट द क्लास। तो आज मैं লৈ আহিছো पांचটা क्वेश्चन। आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि बेस्ड होगा डीप वेलोसिटी। तो साउंड बोले 5টা क्वेश्चन डीप वेलोसिटी केनेকুৱা डिपेंड करे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन तो की কৈছে द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद द स्पीड vd। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट কৈছে with the speed vd in a conductor with the potential difference v across its end। অর্থাৎ ইলেক্ট্রন এটা কন্ডাক্টৰৰ ভিতৰত মুভ কৰিছে with what velocity v velocity, sorry, with vd velocity। যদি আমি ইয়াৰ একছত potential difference কিমান এপ্লাইড কৰিছো v potential, অর্থাৎ আমি বেটাৰি লগাইছো যাৰ potential কিমান v। ठीक है, ओके। इफ v is reduced टू v by 2, पोटेंशियल कितना रिड्यूस करके v by 2। इनिशियली तुम्हें v লগালা, তাৰপিছত কি কৰিলা, ইউ হেভ চেঞ্জড ইট। তো अब जो तुम लगा रहे हो, এতিয়া যোনটো তুমি লগাইছা কণ্ডাক্টৰ একছত পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স, অৰ্থাৎ বেটাৰি যোনটো লগাবা যোনে আমাক পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স দিব, সি কিমান দিব এতিয়া v/2 এমাউন্ট দিব। কিমান দিব v/2, আগত কিমান দি আছিলে বেটাৰিটোৱে v। তো যদি আমি ভল্টেজটো চেঞ্জ কৰো, মিন্স ভল্টেজ মিন্স কি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স, যদি আমি পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো চেঞ্জ কৰো হুইচ এপ্লাইড একৰছ দ্য এন্ড অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ, তাত কি ডিফাৰেন্স দেখা যাব, ইজ দেয়াৰ এনি ডিফাৰেন্স অকাৰ্ড इन डीप वेलोसिटी की डीप वेलोसिटी के बाद डिफरेंस देखा जाबो। अगर हम वोल्टेज चेंज करते हैं v से v/2 में, जो कि इस कंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ था, तो पहले जो डीप वेलोसिटी vd था, अब क्या उस vd में कुछ चेंज ऑब्टेन होगा, कुछ vd में चेंज दिखाई देगा क्या, दैट इज द क्वेश्चन। तो जल्दी से करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो सर अब कैसे पता क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज vd। vd स्कूल से हमें जो पता है बेसिक्स, दैट इज नथिंग बट e, कैपिटल ई, और क्या आएगा m इंटू टाउ। अच्छा सर, इस रिलेशन से क्या मैं कुछ ऐसा रिलेशन लगा सकता हूँ जहां पर पोटेंशियल क्रिएट हो। तो वी नो वन लैंग्वेज, আমি এটা সরি নট ল্যাঙ্গুয়েজ, উই নো এ ফর্মুলা দ্যাট ইজ E ইজ ইকুয়াল টু V বাই L। আমি এটা জানো না, জানো L ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর। यहाँ पर আমি গম পাওঁ দ্যাট ইজ V ইজ নাথিং বাট E into L। আচ্ছা, মই এই ৰিলেশ্যনটো গম পাওঁ নে। আচ্ছা, এই দুটা ৰিলেশ্যন মই গম পাওঁ। ইয়াত মোক কি লাগে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই নিড টু মেক এ ৰিলেশ্যন বিটুইন VD এণ্ড V। মানে মই এটা ৰিলেশ্যন বনাব লাগিব প্ৰথম ড্ৰিপ ভেলোচিটি আৰু ভিৰ লগত। স্যাৰ ইয়াততো ৰাইট হেণ্ড সাইডত ক'ত V নাই, E হে আছে। তেতিয়া মই কৰিম E বদলি মই কি লিখি দিম, দ্যাট ইজ নাথিং বাট V বাই L। আমি জানো দ্যাট ইজ V ইজ নাথিং বাট, সরি, E इज नथिंग बट V by L। हमें पता है E क्या होता है, V by L होता है। तो यहाँ पर मैं E के बदले क्या पुट करूंगा, V by L। ইয়াত মই E বদলি কি পুট কৰিম, V by L। তলত M টো M এ থাকিব না ফৰ্মুলা একৰ্ডিং, ইয়েস, আৰু টাউ টো টাউ। সো দেয়াৰফৰ যেতিয়া আমি পটেনশিয়ালটো চেঞ্জ কৰো, ইট ইজ ক্লিয়াৰ ডেট VD ইজ নাথিং বাট E V by ML ইনটু টাউ। ইয়াৰ পৰা মোক দৰকাৰ কি, V টো দৰকাৰী, তো মই E টো ললো, স্যার টাউ টো ভিতৰত ভৰাই দিলো, ML টো থলো, কিন্তু मैं v2 की करते उलाई दिलू। therefore it's clear that vd की उला से इक्वेशन तो हिसाब है, इस रिलेशन से इक्वेशन में क्या पता चलता है, that e tau by ml is nothing but into v। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ vd is directly proportional to v। मतलब যদি ইয়াৰ মানে কি, যদি ভল্টেজটো আগত v আছিল, তে তাৰ হিচাপে পটেনশিয়াল কিমান vd আছিল। যদি ভল্টেজটো মই হাফ কৰি দিও, সিন্স vd is directly proportional to v, মানে তাৰ একৰ্ডিং v2 টো কি হ'ব, হাফ হৈ যাব। কেনেকে চাই লম বলা। দ্যাট ইজ ইনিশিয়ালি যেতিয়া যেতিয়া মই পটেনশিয়ালটো v বুলি ধৰিছিলো, এটা মই ৰিলেশ্যনটো গম পাওঁ, দ্যাট ইজ e tau by m l। अब पोटेंशियल कितना लग रहा है, अक्रॉस द कंडक्टर v लग रहा है, लेकिन मैंने चेंज द पोटेंशियल टू v by 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डीप वेलोसिटी को अलग से दिखाया, दैट इज vd डैश। तो अब जो नया डीप वेलोसिटी होगा, जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर चेंज कर दिया है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर लो फ्रॉम v/v/2, v से v/2 तक लेके गया। तो यहाँ पर देखो क्या चेंज आ रहा है, e tau ml into v होल थिंग into nothing but half। अगर तुम देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ई टाउ बाय एम एल इंटू वी के बदले क्या आ रहा है, वी डी आ रहा है जो इनिशियल केस में, और जो मेरा नया पोटेंशियल ड्यू वेलोसिटी वी डी डैश वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ ऑफ वी डी। तो आपको जो कॉन्सेप्ट सही लगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो सही लगे आप वो भी देख सकते हो कि जैसे मैंने वी चेंज कर दिया तो डी वेलोसिटी भी हाफ हो गया। क्या आप इस रिलेशन से भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो सर, आप इसे ये देख सकते हो दैट इज Vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, माने द डी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, যদি আমি V2 স্যার V2 কি করো হাফ কৰি দিও तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करने Vd2 की हो যাব हाफ हो যাব। सिंस मैं V को हाफ कर रहा हूं और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, अगर V भी घटेगा तो Vd भी घटेगा, अगर V बढ़ेगा तो Vd भी बढ़ेगा। दैट्स ऑल इन शॉर्ट, दैट इज सर अगर मोरल ऑफ द स्टोरी दैट इज Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसके कारण अगर V घटेगा तो Vd भी प्रोपोर्शनली घटेगा, और अगर V बढ़ेगा तो Vd भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। सो अगर V हाफ हो रहा है तो Vd भी क्या होगा, देखने से बोलो पहले से क्या होगा, हाफ हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज नो डाउट ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन, যদি কিবা ডাউট আছে সুধিব পাৰিবা। থ্যাংক ইউ।